Hello everyone, welcome back. So in this video, we will discuss about trade secret. Okay, so what is trade secret? So in layman's language or in common terms, you can say that trade secret is any practice or process of a company that is unknown to the people outside of the company. Okay, it is the secret or the process or the practice is known to the people who are working in the company or a close group of people. Okay, it is unknown to the people outside the company. So information is considered as a trade secret when it gives competitive advantage over its competitors. Okay, so the company has a advantage over the competitors because of the product or the process. The information is very crucial. Okay, if this information is leaked, then the company may lose the competitive edge. Okay, and most of the times this practice or the process, okay, which is the trade secret, is the product of internal research and development. Okay, so it is the product of internal research and development of the company, and it is unknown to the people outside the company. Generally the information is kept within the close group of people which are at the टॉप लेवल. ओके, जनरली तुम्हारा जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या फिर बहुत ही क्लोज ग्रुप ऑफ पीपल के पास ये इंफॉर्मेशन रहता है. ओके, सो फर्स्ट वी विल सी व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ट्रेड सीक्रेट, देन वी विल मूव ऑन टू अदर एस्पेक्ट्स. ओके, so a trade secret is a formula, practice, process, design, instrument, pattern or compilation of information having restricted access. यानी सबको नहीं पता है. It is known only to a few people, generally at the top level, and used by a business to obtain advantage over the competitors or customers. Now this information can be a formula, जैसे पेप्सी का या फिर कोको कोला का फॉर्मूला है टू मेक द कोला ड्रिंक. ओके, और इट कैन बी केचप ऑफ योर KFC में जो सॉस या केचप यूज होता है. सो एवरी बिजनेस हैज सम और द अदर फॉर्म ऑफ ट्रेड सीक्रेट. ओके, सारा कुछ डिस्क्लोज नहीं करते हैं. नाउ सपोज इवन द क्लाइंट लिस्ट, नाउ सपोज देयर इज ए लॉ फर्म, वो उसका क्लाइंट्स कौन कौन है ये भी बहुत बार डिस्क्लोज नहीं करते हैं वो लोग. जनरली केस अगर होगा तो डिस्क्लोज हो जाएगा, अदरवाइज सम कंपनीज इवन कीप देयर क्लाइंट लिस्ट और कस्टमर लिस्ट एज ए ट्रेड सीक्रेट. ओके, सो ट्रेड सीक्रेट कैन बी अ फॉर्मूला, प्रैक्टिस, प्रोसेस, डिजाइन, इंस्ट्रूमेंट, पैटर्न, कंपाइलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, डाटा. ओके, रिसर्च का डेटा वो भी सीक्रेट हो सकता है, बिकॉज इफ दैट डाटा इज लीक्ड इट में द कंपनी में लूज द कॉम्पिटिटिव एज. तो जो मार्केट में उनका जो स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ कस्टमर्स है वो लीक हो गया तो वो डेंजरस है. ओके, सो बहुत बार डेटा, क्लाइंट लिस्ट वो भी ट्रेड सीक्रेट माना जाता है. ओके, देन द एसेंशियल कंपोनेंट्स क्या है इसके? कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन और अनडिस्क्लोज्ड इंफॉर्मेशन. दिस इज द एसेंशियल कंपोनेंट. ये इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल है और ये अनडिस्क्लोज्ड इंफॉर्मेशन है. दैट मीन्स दिस इंफॉर्मेशन इज नॉट नोन टू द पब्लिक. दिस इज with the few group of people, generally at the top level of the company. Okay, and और एक important component क्या है इस definition में? State will not come for the protection in case of infringement. यानी trade secret जो है, company has the entire burden will be on the company to protect the trade secret. Okay, state will not come for the प्रोटेक्शन ऑफ द कंपनी. जैसे पेटेंट्स में है, सपोज पेटेंट में क्या होता है, गवर्नमेंट है एंड योर कंपनी है सपोज. ओके, सो कंपनी ने एक इन्वेंशन बनाया. ओके, उसका पूरा इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज कर दिया. कंपनी हैज डिस्क्लोज द एंटायर इंफॉर्मेशन of how this invention works, how to prepare to the government. Okay, now government will give protection in the form of a patent. So through patent government will protect the invention for 20 years.
ओके ये क्विड प्रो क्यो है. ओके क्विड प्रो क्वो में क्या होता है, गिव एंड टेक. सो कंपनी ने अपना पूरा इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज किया गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट ने 20 साल का प्रोटेक्शन दिया. पर यहां पर क्या है, कंपनी इज नॉट डिस्क्लोजिंग एनीथिंग, सो अनडिस्क्लोज्ड इंफॉर्मेशन है. सो द बर्डन टू प्रोटेक्ट द इंफॉर्मेशन इज विद द कंपनी. द स्टेट और द गवर्नमेंट विल नॉट कम फॉर द प्रोटेक्शन इन केस ऑफ इंफ्रिंजमेंट. अगर इंफ्रिंजमेंट होता है, तुम्हारा इंफॉर्मेशन बाहर किसी ने लीक कर दिया, तुम्हारे कॉम्पिटिटर्स को पता चल गया, स्टेट विल नॉट हैव एनी रोल. स्टेट उसमें बीच में नहीं आएगा. तुम्हारी गलती है, तुमको प्रोटेक्ट करना चाहिए था. सो यू थॉट दैट वी कैन कीप दिस इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज्ड एंड गेन एज ओवर आवर कॉम्पिटिटर्स इन द मार्केट, बट somehow the information got leaked. Now the government will not interfere. Okay, so basic principles क्या है, non disclosure agreement and non compete clause. So how to protect it. अब जो non disclosure ये तुम्हारा ट्रेड सीक्रेट है, कैसे कैसे प्रोटेक्ट करोगे इसको, हाउ विल यू प्रोटेक्ट इट. सो इसमें वी हैव फ्यू मेजर्स. एक है नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट्स. नाउ सपोज the information about the formula for Coca-Cola drink is known to 10 people. Okay, 10 people in the company at the top level. Okay, so you will ask them to sign a non-disclosure agreement. Okay, every employee or scientist या R&D, the people working in R&D who have developed the formula, who knows the formula, जिसको वो फॉर्मूला पता है, दे विल ऑल साइन ए नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट. ओके, दैट दे विल नेवर डिस्क्लोज द सीक्रेट टू द पीपल आउटसाइड द कंपनी. ओके, टू एनीवन, किसी को भी वो सीक्रेट बताएंगे नहीं. सो नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट, इफ इन केस दे डिस्क्लोज, हैवी फाइन्स जो भी है उनके ऊपर लगेगा. वो एग्रीमेंट के ऊपर वो लोग सारे डिटेल्स लिखा होता है. सो नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट साइन करवा सकते हैं. देन नॉन कंपीट क्लॉज भी है इसमें. सो नॉन कंपीट क्लॉजेस क्या होते हैं, सपोज देर आर टू पार्टनर्स इन ए बिजनेस. ओके, सपोज मैं हूं, मी एंड माई फ्रेंड. ओके, सो ए बी दो लोग हैं, मी एंड माई फ्रेंड. इट इज मी, ये मेरा फ्रेंड है ए. ओके, सो वी हैव स्टार्टेड ए बिजनेस, मी एंड माई फ्रेंड हैव स्टार्टेड ए बिजनेस. इट इज गोइंग वेल, बट दोनों के बीच में कुछ झगड़ा हो गया. नाउ व्हाट हैपेंड, माई फ्रेंड वांट्स टू गो आउट. ओके, ही वॉन्ट्स टू ऑप्ट आउट फ्रॉम द बिजनेस. अब मैं क्या करूंगा, सपोज हमारे पास कोई ट्रेड सीक्रेट था, सपोज कोको कोला है या फिर कुछ कोल्ड ड्रिंक का सीक्रेट है. ओके, मैं क्या कराऊंगा, इससे नॉन कंपीट क्लॉज एक साइन कराऊंगा. इफ यू वांट टू मूव आउट ऑफ द बिजनेस, साइन द नॉन कंपीट क्लॉज. ओके, नॉन कंपीट क्लॉज से साइन करना पड़ेगा. क्या बोलते हैं उसमें, ओके, आफ्टर यू मूव आउट ऑफ द बिजनेस, तो मैं कोल्ड ड्रिंक्स के बिजनेस में हूं. ओके, सॉफ्ट ड्रिंक्स के बिजनेस में हूं, हम दोनों मिलकर सॉफ्ट ड्रिंक का बिजनेस करते हैं. सो ही वांट्स टू ऑप्ट आउट. सो व्हाट आई विल गिव इन द कॉन्ट्रैक्ट, मैं क्या कॉन्ट्रैक्ट में बोलूंगा, नॉन कंपीट क्लॉज का क्या होता है, यानी आफ्टर यू मूव आउट, ओके, माई फ्रेंड आफ्टर ही मूव्स आउट ऑफ द पार्टनरशिप, ही कैन स्टार्ट एनी बिजनेस अदर देन दिस. अब पैसा ले लिया, आधा आधा 50-50 पार्टनरशिप था, ये बाहर जाओ, तुम जूतों का कंपनी स्टार्ट करो, शू का, फुटवेयर का, कार का, डू एनीथिंग अदर देन दिस. बिकॉज इसको ये पता है कॉम्पिटिटिव, जो मेरा सीक्रेट है, फॉर्मूला है, जो हमने कोल्ड ड्रिंक बना रहा है उसका फॉर्मूला इसको भी मालूम है. सो ही कैन डू एनी बिजनेस अदर देन दिस. सेम बिजनेसमैन मत आओ, तुम किसी और फील्ड में बिजनेस कर सकते हो, नॉट इन दिस और एनी रिलेटेड बिजनेस. ओके, सो नॉन कंपीट, यानी तुम मेरे साथ कंपीट नहीं कर सकते. वंस यू मूव आउट ऑफ द पार्टनरशिप, यू कैन नॉट कंपीट विथ मी. ओके, उसको नॉन कंपीट क्लॉज बोलते हैं. देन एक और प्रिंसिपल है, बेसिक प्रिंसिपल इसमें, परपेचुअल मोनोपोली. व्हाई पीपल गो फॉर ट्रेड सीक्रेट्स. क्यों लोग ट्रेड सीक्रेट रखना चाहते हैं, क्यों, परपेचुअल मोनोपोली है. यानी अगर जब तक तुम इसको सीक्रेट रख सकते हो ना, यू विल हैव कॉम्पिटिटिव एज ओवर योर कॉम्पिटिटर्स. ओके, यू विल हैव मार्केट टू योर सेल्फ. कोई कंपीट ही नहीं कर सकता क्योंकि तुम्हारा ट्रेड सीक्रेट तुमने बचा कर रखा है. इफ 100 years के लिए भी तुम प्रोटेक्ट कर सकते हो, एज लॉन्ग एज यू कैन प्रोटेक्ट द ट्रेड सीक्रेट, यू विल हैव मोनोपोली इन द मार्केट. ओके, अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम ट्रेड सीक्रेट को प्रोटेक्ट करना है. ठीक है, स्टेट कोई इसमें पार्ट नहीं लेगा. देन
a third party is not prevented from independently duplicating or obtaining and using the trade information. अब ये ट्रेड सीक्रेट है. सपोज आई एम इन कोल्ड ड्रिंक बिजनेस. अब मैं कोल्ड ड्रिंक बना रहा हूं. ओके, मेरा एक ट्रेड सीक्रेट है. सपोज कोई और आदमी, कोई दूसरा आदमी कहीं पर कोल्ड ड्रिंक के ऊपर टेस्ट कर रहा है. मेरा कोल्ड ड्रिंक बार बार पी रहा है और वो अपना नया फॉर्मूला बना रहा है. ओके, सो मेरा कोल्ड ड्रिंक उसने बगल में रखा है और अपना नया एक फॉर्मूला बना रहा है. ही इज टेस्टिंग इट एंड अगेन रिक्रिएटिंग इट. रिवर्स इंजीनियरिंग करने की कोशिश कर रहा है ताकि टेस्ट ऑलमोस्ट सिमिलर रहे. ओके, सो इट इज, आई मीन, मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट कैन बी डन, बट जहां पर फॉर्मूला बहुत कॉम्प्लेक्स है ये नहीं कर सकते. मोस्ट ऑफ द थिंग्स कैन बी रिवर्स इंजीनियर्ड. अगर आपके पास रिसर्च एंड डेवलपमेंट का अच्छा सा एक डिपार्टमेंट है, रिवर्स इंजीनियरिंग कर सकते हो कुछ चीजों का. बट बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जिसका इजिली रिवर्स इंजीनियरिंग नहीं कर सकते. नाउ सपोज आई हैव ए कोल्ड ड्रिंक फैक्ट्री. मेरा कोल्ड ड्रिंक है, उसका एक सेपरेट फॉर्मूला है. ओके ना, एक नॉर्मल एग्जांपल लो. चलो ये मेरा एग्जांपल नहीं देता मैं. एक कोको कोला का कंपनी है. ओके, कोको कोला का ड्रिंक है. मैं लेके आया मार्केट से, कोको कोला मैंने लेके आया. अब मैं घर में कोको कोला बना रहा हूं. ओके, डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स मिला के, एंड आई एम टेस्टिंग द कोको कोला. मैं 1 साल से वही टेस्ट कर रहा हूं. हर रोज एक नया बनाता हूं एंड चेक करता हूं कि कितना सिमिलर टेस्ट है कोक के साथ. अगर मैंने ऐसे ट्राई कर करके सपोज मैंने क्रैक कर लिया कोड. ओके, मैंने वो फॉर्मूला बना दिया जो ऑलमोस्ट सेम टेस्ट देता है. सी, आई हैव इंडिपेंडेंटली अराइव्ड एट दैट सीक्रेट इंफॉर्मेशन. टेस्ट, ट्रायल एंड एरर कर करके मैंने वो बना लिया. ओके, मेरे को किसी ने डिस्क्लोज नहीं किया, बट आई रिवर्स इंजीनियर्ड इट. समहाउ मैंने वो पता कर लिया और मैंने ब्रेक कर दिया कोड. ओके, मुझे वो सीक्रेट फॉर्मूला, इतना शुगर मिलाना है, इतना कोला, इतना इतना ये पर्टिकुलर मिला के, इतना कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2, ये करके मैंने बना लिया. समहाउ आई ब्रोक द फॉर्मूला. मैंने कैसे ना कैसे वो फॉर्मूला ब्रेक कर दिया और मैंने कोको कोला बना लिया. ये कोई इंफ्रिंजमेंट नहीं है, बिकॉज इंडिपेंडेंटली आई हैव अराइव्ड एट दैट पॉइंट. सी, a third party is not prevented from independently duplicating or obtaining and using the secret information. But अगर मैं ऐसे करोगे तो कोई बात नहीं, चलता है, दिस इज नॉट इंफॉर्मेशन. बट सपोज मैंने कोको कोला के किसी मैनेजिंग डायरेक्टर को ब्राइब दिया, उसको 2 करोड़ रुपए दिए और बोला कि मुझे सीक्रेट बता, और उससे वो सीक्रेट जान लिया. अब मैं कंपनी, अब मैं को अपना एक नया कोल्ड ड्रिंक स्टार्ट कर रहा हूं. दैट इज अनएथिकल प्रैक्टिस. ओके, अगर मैं इंडिपेंडेंटली रिसर्च करके बना रहा हूं तो ठीक है, बट अगर मैं किसी को पैसा देके वो सीक्रेट इंफॉर्मेशन बाहर निकाल रहा हूं, वो अनएथिकल प्रैक्टिस है. ओके, देन पर्पस, व्हाई पीपल गो फॉर ट्रेड सीक्रेट्स. क्यों जाते हैं ट्रेड सीक्रेट्स के लिए. ओके, सो व्हेन इन्वेंशन इज नॉट पेटेंटेबल, जब उसको पेटेंट ले ही नहीं सकते. सी, पेटेंट्स के लिए क्या होना चाहिए, इट शुड बी न्यू और नोवल, नया होना चाहिए. ओके, इन्वेंटिव स्टेप होना चाहिए उसमें. एंड थर्ड इज इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन. सो व्हेन यू हैव ऑल दीज 3 थिंग्स, देन ओनली द इन्वेंशन इज पेटेंटेबल. एंड इन सम केसेस पेटेंट नहीं दिया जाता है. ओके, देयर आर एक्सेप्शंस. ओके, नॉन पेटेंटेबल इन्वेंशंस है सेक्शन 3 में इंडिया में. ओके, सेक्शन 3 जो है तुम्हारा पेटेंट्स एक्ट में, नॉन पेटेंटेबल इन्वेंशंस है. देयर आर सर्टेन इन्वेंशंस व्हिच कैन नॉट बी पेटेंटेबल. व्हेन द इन्वेंशन इज नॉट पेटेंटेबल, तब क्या करोगे, सिर्फ ट्रेड सीक्रेट ही रख सकते हो तुम. देन पेटेंट प्रोटेक्शन इज लिमिटेड टू 20 years, बट ट्रेड सीक्रेट कैन बी केप्ट बियॉन्ड दैट पीरियड. इफ यू कैन प्रोटेक्ट द इंफॉर्मेशन, देन द प्रोटेक्शन इज परपेचुअल. तुम पूरे लाइफ के लिए प्रोटेक्ट, तुम 100 years के लिए सीक्रेट रख सकते हो उसको, बट बर्डन तुम्हारे ऊपर है. यू हैव टू प्रोटेक्ट इट. रिस्क है इसमें. ठीक है, कॉस्ट ऑफ पेटेंट प्रोटेक्शन आर प्रोहिबिटिव. सो व्हेन, सी, इफ यू वांट टू प्रोटेक्ट योर इन्वेंशन थ्रू पेटेंट, उसका फीस जमा करना पड़ता है. ओके, सो एवरी कंट्री हैज इट्स ओन रूल्स हैं उसमें. कोई क्वार्टरली फीस लेते हैं, कोई ईयरली फीस लेते हैं, कोई हाफ ईयरली फीस लेते हैं, कोई 2-3 साल में एक बार फीस लेते हैं. सो इट डिपेंड्स अपॉन द कंट्री. सो यू हैव टू पे अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ फीस टू प्रोटेक्ट द पेटेंट. तुमको हर 2 साल में या 4 साल में, 5 साल में, या फिर हर साल, कंट्री से कंट्री डिपेंड करता है. यू हैव टू प्रोटेक्ट इट बाय पेइंग ए पर्टिकुलर फीस. बट अगर सपोज तुम्हारा फीस बहुत ज्यादा है, देन यू कैन प्रोटेक्ट इट थ्रू
trade secret. If you think that fees is too much, जरूरत नहीं है, मैं नहीं देना चाहता, then you can do it. When it is difficult to reverse engineer, okay, suppose you have तुम्हारे पास तुमने एक प्रोडक्ट बना लिया, suppose you have developed a product and after 20 years it will be in public domain, okay, but even before that some people can reverse engineer. अभी चाइना वाला ना जो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है या फिर जो तो एयरक्राफ्ट कैरियर्स है, उनके मॉडल्स बोलते हैं कि पूरा यूएस से चुराया है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट किया है यूएस से चाइना ने. अब ये क्या, रिवर्स इंजीनियरिंग करने में चाइना माहिर है. ओके, इवन इंडियंस वी आर एबल टू रिवर्स इंजीनियर द ड्रग्स. ओके, हमारा जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर है, इट इज गुड इन रिवर्स इंजीनियरिंग. जब प्रोसेस पेटेंट था बिफोर 2005, देयर वाज नो प्रोडक्ट पेटेंट इन केस ऑफ फूड प्रोडक्ट्स एंड केमिकल्स and pharmaceutical products. So we have reverse engineered and through other processes we have arrived at the same product. So process patent था, product patent नहीं था. तो हम लोग भी drugs के केस में, उन केसेस में reverse engineering करने में माहिर हैं. तो Chinese भी हैं, they can easily reverse engineer it. सब जब तुमको लगता है कि मेरा जो प्रोडक्ट है उसको कोई रिवर्स इंजीनियरिंग कर ही नहीं सकता, then why should I disclose the information? मैं क्यों बताऊं कि मैंने प्रोडक्ट क्यों बनाया, कैसे बनाया है? So I don't have to take patent. पेटेंट पे तो तुमको सारा बताना पड़ता है, यू हैव टू डिस्क्लोज द इंफॉर्मेशन. बट इफ आई थिंक, अगर मुझे लगता है कि इसको कोई रिवर्स इंजीनियरिंग कर ही नहीं सकता, देन अगर मैं प्रोडक्ट बना के मार्केट में बेचता भी हूं, मुझे पता है कि कोई इसको बना ही नहीं पाएगा मेरे सिवा, देन यू कैन कीप इट एज ए ट्रेड सीक्रेट. अदरवाइज क्या है, पेटेंट लोगे तो 20 साल के बाद सब लोगों के पास वो इंफॉर्मेशन होगा कि कैसे बनाना है. जब तुमको लगता है कि मेरे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किए बिना कोई बना ही नहीं सकता, देन यू कैन keep it as trade secret. Then it is also an advertising strategy. अब देखो कोको कोला का है, इसका फॉर्मूला किसी को भी नहीं पता है. जब मैं ऐसा बोलता हूं तो कैसा लगता है लोगों को, एक क्यूरियोसिटी होती है, अच्छा किसी को भी नहीं पता है, कोई कर ही नहीं सकता, ये कोई ट्रेड सीक्रेट है. ओके, दिस फॉर्मूला इज नॉट नोन टू एनीवन. तो अब एक क्यूरियोसिटी डेवलप होती है. सो एक तरह का ये एडवर्टाइजमेंट स्ट्रैटेजी है कस्टमर्स को कैप्चर करने का. ओके, इट कैन बी यूज्ड एज एडवर्टाइजमेंट स्ट्रैटेजी ऑल्सो. Then confidential information may seek for its protection under the common law, which is breach of faith or breach of confidence. Okay, so patent copyright की तरह कोई statutory protection नहीं है इसमें. It can be protected only under the common law, which is through breach of faith और breach of confidence. तो तुमने तो नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट साइन किया है, सो ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंस या ब्रीच ऑफ फेथ के अंदर तुमको कॉमन लॉ के अंदर प्रोटेक्शन मिलेगा. सो कॉमन लॉ क्या है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लॉस, कॉमन लॉ एंड सिविल लॉ. तो सिविल लॉ में क्या है, एवरीथिंग इज रिटन, स्टैट्यूटरी प्रोटेक्शन है, सब कुछ लिखा हुआ है लॉ में. क्या है, हर चीज लिखी हुई है, ये करोगे तो ये सजा मिलेगा, ये करोगे तो ये मिलेगा. ओके, बट कॉमन लॉ क्या है ना, कॉमन लॉ का मतलब है द लॉ which is unwritten. Okay, sometimes there are situations where there is nothing in the constitution या फिर there is nothing in the penal code, civil code में, civil code बोल रहा हूँ, जो तुम्हारा सिविल प्रोसीजर कोड है या क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है या इंडियन पिनल कोड है, कहीं भी लिखा नहीं है, यूनिक सिचुएशंस होती हैं. देन जजेस, जो तुम लोग जज जो डिसीजन देता है बेस्ड ऑन द प्रेसिडेंट्स ऑफ द कोर्ट्स, कॉमन लॉ इज अराइव्ड. यानी कॉमन लॉ क्या है, इट इज डिपेंडेंट अपॉन द प्रेसिडेंट्स ऑफ द जजेस. तो कॉमन सेंस से जो डिसीजन दिया जा रहा है एंड विच आर डिपेंडेंट अपॉन द प्रीवियस प्रेसिडेंट्स ऑफ द कोर्ट्स विच आर अनरिटन, दैट इज कॉमन लॉ. सो कॉमन लॉ के अंदर ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंस या ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के अंदर तुमको रेमेडी मिलने का चांस है. ओके, सो ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी इज एस्टैब्लिश्ड बाय प्रूविंग दैट इन्फ्रिंजर हैज नो अदर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन एक्सेप्ट दैट ऑफ एम्प्लॉयर. अब अगर कोको कोला कंपनी वाला जो पहले एग्जाम्पल बताया था मैंने, जहां पर मैंने खुद से अपने आप से कोको कोला का ट्रेड सीक्रेट को ब्रेक कर दिया बाय टेस्टिंग एंड ट्राई करके, टेस्ट करके, अगर मैं ऐसे अराइव हुआ हूं, इफ आई हैव arrived at the trade secret of Coca-Cola company by testing and trying and तब तो कोई बात नहीं. But if I have bribed the person working in Coca-Cola company and asked him to
bring me the trade secret, then that is unethical practice. अगर कोको कोला कंपनी ये प्रूव कर देती है कि मैंने पैसा देके दूसरे से इंफॉर्मेशन लिया है, ओके, it is only through the employer I can get the information if they can prove it. ये हमारी कि उनकी कंपनी के किसी बंदे ने मेरे को ये बेचा है ब्राइब लेके, then that is infringement. अगर मैं खुद अराइव हुआ हूं, if I have arrived at this by on my own, okay, without any help from the employer or any of the employees of Coca-Cola, if I have arrived at the trade secret on my own, then it is not an infringement. अगर मैं प्रूव कर देता हूं कि मैंने खुद टेस्ट किया है, मैं 2 साल का पूरा मेहनत, मेरे पास जो भी रजिस्टर पूरा भर गया है फॉर्मूला को टेस्ट कर करके, वो मैं पूरा प्रूफ दिखाता हूं, तो ओके, दिस इज नॉट एन इन्फ्रिंजमेंट. पर पेटेंट में क्या है? पेटेंट में एक बार अगर किसी ने पेटेंट ले लिया तो दूसरा वाला अगर इंडिपेंडेंटली भी सेम इनोवेशन करता है तब भी उसको इंफ्रिंजमेंट ही माना जाएगा, बिकॉज द फर्स्ट पर्सन हैव डिस्क्लोज एवरीथिंग टू द गवर्नमेंट. ओके, सो पेटेंट के केस में फर्स्ट पर्सन टू अप्लाई विल गेट द पेटेंट. ओके, अगर बाद में उसने चोरी किया है वो सब चीजें अलग है, लेकिन पहला बंदा जो अप्लाई करता है उसको पेटेंट मिलता है. बाद में 2 साल के बाद किसी ने इंडिपेंडेंटली सेम प्रोडक्ट बनाया है तो उसको पेटेंट नहीं मिलेगा. दैट विल बी कंसिडर्ड एज इंफ्रिंजमेंट. बट ट्रेड सीक्रेट में इफ सम पर्सन हैज अराइव्ड एट द सेम प्रोडक्ट ऑन हिज ओन, देन इट विल बी ओके. इट इज नॉट इलीगल और इट इज नॉट इंफ्रिंजमेंट. ओके, सो दैट वॉज द बेसिक्स or the basic information about the trade secret. So I hope that this was useful. Okay, so thank you very much. Goodbye.